कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल को भी दबाइए और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो लीजिए देखते हैं द बर्स्ट ऑफ दैट 8 चिल्ड्रन। Precious, on that Saturday morning, was keeping a safe distance from the bus stop. But then she heard something. It made her blood turn icy cold, even in that fierce sun. Tap, 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 tap. It was the largest bump on the witch tree. The one where Capito said the poor lost child was trapped. He was trying to escape. Tap, tap. A hole appeared in the trunk. "Aye!" cried Precious, terrified. If she hadn't had a bus to catch, she would have run away. The hole got larger. Soon a finger would poke through, or a hand. Then the head of the poor lost child would follow. But none of these things happened. Squeezing through the hole in the witch tree came a tiny, rumpled baby bird. It flopped onto the nearest branch, exhausted. Precious forgot how scared she was. She forgot that the witch tree might zip her up inside and eat her. She came up close. She put her eye against the hole. "Capito," she grinned to herself, "you are the world's greatest liar." For inside the witch tree was not a poor lost child, but a nest of hornbill chicks. The mother bird had sealed them in with mud to keep them safe from snakes and eagles. But now they had hatched, and they were breaking out, one by one. The mother bird was on the topmost branch of the witch tree. She was calling her chicks to join her. Tap, 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 tap. Another chick came tumbling out. Precious laughed. "I never really thought," she told herself, "that the bus stop would eat me. Only someone with a head as empty as this basket would think that." "You want this bus or not?" called the bus driver. The bus had come, without Precious even noticing. Precious sat on the bus. "Cassava, beans, rice," she said, so she didn't forget. Then she thought about the new baby. Maybe it would have arrived by the time that she got home. Would Precious tell her new brother or sister scary stories about the child-eating bus stop? Stories like the one Capito told her? Of course she would. For it would be a great shame, wouldn't it, to waste a good story. चलिए अब इसे हिंदी में भी सुन लेते हैं। वो बस स्टॉप जो चिल्ड्रन को मतलब बच्चों को खाता था, सुसैन गेट्स का ये एक छोटा सा स्टोरी है। प्रेसियस नाम की लड़की सैटरडे के मॉर्निंग में जब स्कूल जा रही थी तब बस स्टॉप के यहाँ पे खड़ी थी और उसने उस चुड़ैल के पेड़ के पास से मतलब थोड़ा डिस्टेंस रख के खड़ी थी, वहाँ उसे टैप टैप करने की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत उसकी बॉडी इतने हीट में भी ठंडी पड़ गई थी और वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उस आवाज़ को सुन रही थी। टैप टैप टैप, जो आवाज़ उस चुड़ैल के पेड़ में से जो बड़ा सा होल था उसमें से आते थे। उसे कैपिटो नाम का जो भाई था, जो उसका फ्रेंड था, उसने उसे एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बच्चे को इस चुड़ैल के पेड़ ने खा लिया है और वो बच्चा उसके होल के अंदर है। अंदर से वो बाहर निकलने के लिए आवाज़ देता है। जैसे ही आवाज़ आया वो जोर से चिल्लाई, आए! ऐसे प्रेसियस चिल्लाई तो प्रेशियस को लग रहा था अब ये पेड़ बस आने के पहले ही मुझे खा जाए और बस आ जाती तो वो उसमें बैठ के चली जाती थी। तभी वो होल बड़ा हो गया। उसने सोचा अब उसमें से एक तो उंगली बाहर निकलेगी, नहीं तो हाथ बाहर निकलेगा और उसमें से बच्चा जो खो गया है वो बच्चा बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। उस
चुड़ैल के पेड़ के अंदर से एक छोटा सा हॉर्नबिल का बेबी बाहर निकला और वो उड़ के पेड़ पे सबसे हाइटेड प्लेस पे जाके बैठ गया। बेचारी प्रेसियस बहुत ही आश्चर्यचकित होके वो देख रही थी। अब वो डर को तो मानो भूल ही गई थी और वो ये भी भूल गई थी ये चुड़ैल का पेड़ ये हमें खा भी सकता है। क्या आइडिया है, कभी सोचा ही नहीं था। वो तुरंत उसके पास गई और उस होल में अंदर जाके देखा। ओ माय गॉड, क्या पिट्टू कितना झूठ बोलता है ये, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। और ऐसे बोलते ही उसने जब देखा, क्या देखा है पता है अंदर? उसने अंदर छोटे छोटे हॉर्नबिल के 2 बच्चे जो अंडों में से बाहर निकल के आए थे। आपको पता है बच्चों, दरअसल हॉर्नबिल जो बर्ड है उसकी मम्मी ने ये बच्चों को मतलब ये अंडों को सेफ रखने के लिए स्नैक्स नहीं तो ईगल जो होती है वो इस अंडों को खा जाती है, इसलिए उसने क्या किया था, जो मड होता है उससे इस होल को दबा दिया था। लेकिन अब अंडों में से बच्चे बाहर निकल आए हैं तो मम्मी उन्हें आवाज़ दे रही है और बच्चे उड़ के मम्मी के पास वहाँ पे पेड़ पे सबसे हाइटेड वाले प्लेस पे जा रहे थे। ये देख के प्रेसियस बहुत ही खुश हो रही थी। यार मैं भी कितनी पागल हूँ ना, बस स्टॉप कोई चुड़ैल का पेड़ हो सकता है हमें खाने वाला। टैप टैप फिर से आवाज आया और फिर से दूसरा वाला हॉर्नबिल का जो बच्चा था वो भी उड़ गया और प्रेसियस जोर से कितनी यार मैं कितनी बुद्धू हूँ, ऐसे कभी हो सकता है, बस स्टॉप कभी किसी को खा सकता है। कितनी फुलिश आइडिया थी कैपिटो, सच्ची में तुम बहुत बड़े झूठे हो। और ऐसे सोचने वाला भी इस खाली बास्केट की तरह ही उसका दिमाग भी खाली होगा। और तभी उसके पास में जो बस खड़ी थी उसका कंडक्टर ड्राइवर उसे जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा था, तुम्हें बस में बैठना नहीं है क्या? और वो तुरंत दौड़ के इधर उधर न देखते हुए वो तुरंत बस में बैठ गई। बस में बैठने के बाद वो छोटे छोटे उन बच्चों के बारे में, वो जो बर्ड्स के बच्चे थे उनके बारे में सोच रही थी। ओ मेरे राइस बीन्स, इसके बारे में वो तो जस्ट भूल ही गई थी और कुछ नहीं याद था उसे। वो बेबी के वो जो बर्ड बेबी थे वो याद थे। अब वो घर जाने के बाद क्या करेगी? वो घर जाने के बाद क्या करेगी? आपको क्या लगता है? वो अपने छोटे छोटे भाइयों को बहनों को ये वाली स्टोरी जो है ये बताएगी, जो बस स्टॉप बच्चों को खाता है। चुड़ैल का वहाँ पे एक पेड़ है। कैपिटो जैसे स्टोरीज बनाता था वैसे वो भी बनाएगी। वो क्यों छोड़ देगी ऐसा मौका? और इसमें मज़ा भी बहुत आता है। क्यों, आपको भी आया ना? तो ऐसे ही मेरी स्टोरियाँ सुनते रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही मेरे चैनल को।